dear students. Today we are going to solve question number 1, 2 and question number 3 of this exercise 9.3. Question number 1, find the 20th and nth term of the geometric progression 5 upon 2, 5 upon 4, 5 upon 8 and so on. Given geometric progression is 5 upon 2, 5 upon 4, 5 upon 8 and so on. Here first term a is equal to 5 upon 2 and common ratio r is equal to a2 divided by a1, a2 5 upon 4 and a1 5 upon 2, a2 is 5 upon 4 into 2 upon 5. 5 से 5 cancel, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 upon 2. Value of r is 1 upon 2. Therefore find करना है हमें क्या 20th term. तो by using formula of nth term a n is equal to a r n minus 1. It means a 20 is equal to a r 20 minus 1 a r 19. Value of a is 5 upon 2 and value of r is 1 upon 2. 1 upon 2 19. देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 5 upon 2 into 1 raised to 19 is equal to 1 and 2 raised to 19. 5 into 1, 5 into 1, 5 1 are 5. 2 into 2 raised to 19. 5 upon. When the base is same, देखिए अगर क्या होगा हम इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग कर सकते हैं a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n. बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है. तो ये क्या हो जाएगा 2 1 plus 19 इट मीन्स 5 upon 2 raised to 20. एंड आपको क्या फाइंड करना था nth टर्म a n is equal to a r n minus 1. So a n is equal to value of a 5 upon 2 and value of r 1 upon 2 n minus 1. 5 upon 2, 1 raised to n minus 1 is equal to 1 and 2 raised to n minus 1. 5 ones are 5, 2 into 2 raised to n minus 1 according to this formula. 5 upon 2, 1 plus n minus 1. 1 से 1 cancel. 5 upon 2 raised to n. So value of a20 is 5 upon 2 raised to 20 and value of an 5 upon 2 raised to n. Question number 2, find the 12th term of a geometric progression whose 8th term is 192 and the common ratio is 2. So start. Let a be the first term. हमने मान लिया कि a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म एंड r be the common ratio. Here देखिए वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या दी हुई है 2. इट मीन्स वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2 एंड एथ टर्म a8 इज इक्वल टू 192. a8 मीन्स a r रेस टू 7 क्योंकि देखिए फॉर्मूला ऑफ a n क्या होता है a r रेस टू n माइनस 1. अगर यहाँ 8 पुट करेंगे तो a r रेस टू 8 minus 1 it means a r raised to 7. तो value of a8 is equal to a r raised to 7 is equal to 192. a into value of r is 2, 2 raised to 7 is equal to 192. a 2 raised to 7 is equal to 128. a is equal to 192 upon 128. कैंसिल करेंगे इसे हम. तो कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आएगा 3 upon 2. देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना था 12th टर्म. तो a12 इज इक्वल टू a r 12 minus 1 by using formula of nth term.
A12 is equal to value of A 3/2 into value of R2 2 raised to 12 minus 1 11 3/2। देखिए हम अगर 2 को अपर साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 raised to minus 1 एंड 2 raised to 11 a raised to m इंटू a raised to n क्या हो जाता है m प्लस n। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 raised to minus 1 प्लस 11 3 इंटू 2 raised to क्या हो जाएगा 10 3 इंटू 2 raised to 10 की वैल्यू होती है 1024 इंटू 3 इज इक्वल टू 3072। Question number 3. The 5th, 8th and 11th term of a geometric progression are P, Q and S respectively show that Q square is equal to PS। देखिए आपको 5th टर्म दिया है P, 8th टर्म दिया है Q एंड 11th टर्म दिया है S और आपको ये रिलेशनशिप प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेट A बी द फर्स्ट टर्म, ए को हमने क्या मान लिया है हमारा फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ देयरफॉर A5। देखिए A5 क्या दिया हुआ है आपके पास P and value of A5 A r raised to 4P से हम देते हैं इक्वेशन 1। A8 कितना दिया है आपके पास Q, वैल्यू ऑफ A8 A r raised to 7Q इक्वेशन सेकेंड एंड वैल्यू ऑफ 11th टर्म आपको क्या दिया हुआ है A11 इज इक्वल टू S A r raised to 10 इज इक्वल टू S। इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमें रिलेशनशिप में क्यू स्क्वायर दिया है और क्यू स्क्वायर हमारे कौन से इक्वेशन में है सेकेंड इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए A r raised to 7 होल स्क्वायर Q स्क्वायर। देखिए A raised to m होल raised to n क्या होता है A raised to m इंटू n, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा A स्क्वायर r raised to 7 2 ज़ा 14 Q स्क्वायर। अब देखिए हम A को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंड R को क्या लिख सकते हैं R 10 इंटू r raised to 4, क्योंकि देखिए बेस सेम होने पर पावर प्लस हो जाती है तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा देखिए A r raised to 4 इंटू A r raised to 10 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब देखिए A r raised to 4 इन प्लेस ऑफ A r raised to 4 हम क्या पुट कर सकते हैं P कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंड A r raised to 10 इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम S कहाँ से इक्वेशन 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या कर सकते हैं हम A r raised to 4 की जगह में हम लिख रहे हैं P और यहाँ लिख रहे हैं हम S। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। आपको यही रिलेशन क्या करना था प्रूफ करना।